السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو کل ہمارا سبق تھا تختی نمبر 5 پر، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 6، جس میں مشق، حرکات، حروف مدہ، حروف لین۔ تو اب اس سے آگے چلتے ہیں تختی نمبر 7 پر، تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں بھائی۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، تنوین کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جیسے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، یہ کیا ہے؟ تنوین۔ ہاں، اب چلتے ہیں تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ جس نون کے اوپر جزم ہو، وہ سکون ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ اب دھیان دیں، تختی میں تو جیسے لکھ رہا ہے کہ ویسے ہے نہیں، کہ جس نون کے اوپر جزم ہوگا اس کو ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا کہیں گے؟ ہاں، ساکن والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ ہاں، اب تنوین و نون ساکن، یعنی کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز میں یکساں ہوگی، ہے ایک الگ وہ ہوگا، جیسے تا الف دو زبر تن، یہ تو الگ ہے، تا نون زبر تن، تن تن، ہو رہی ہے نا الگ، تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، ہوگی نا الگ الگ۔ ہاں، اسی طریقے سے عین الف زبر آ، دال الف دو زبر دن، آدن۔ ہاں، سو ان، قریب، یہ۔ اب تختی نمبر 9 پہ، تختی نمبر 9، دھیان دے، پوری قرآن میں یہ آئیں گے، دھیان دے آپ۔ تختی نمبر 9، اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ اب یہاں سے قاعدہ چالو ہو چکے ہیں ہمارے، اب ان کو ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ حروف حلقی 6 ہے، کتنی؟ ہاں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین و نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آگا تو اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار۔ ہاں، اس کو بلا غنہ کے جلدی ادا کریں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب دھیان دیں، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ اب یہاں سے قاعدہ چالو ہے، اب اجرا چالو نہیں ہے، اب قاعدہ چالو ہے۔ طیرن ابابیل میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ بتائیے، طیرن ابابیل میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا ہوگا؟ رن ابابیل میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ اس کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو بلا غنہ کے جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حروف حلقی کو جلدی ادا کریں گے، جیسے طیرن ابابیل، نار حامیہ، نار حامیہ۔ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا ہے،
इसलिए हरूफ इजहार होगा, इसको बिला गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से कायदा होंगे। हरूफ हल्के कितने? 6। हमजा, आइन हा, गाइन का। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है जहां पर दो ज़बर की तनवीन हो। ठीक है, जैसे रा अलिफ दो ज़बर, रन हामिया, रन रन हामिया, नारुन हामिया, लिमन खशिया। अगर नून है, नून के ऊपर जज़म है, ठीक है, वही ध्यान से सुने, नून के ऊपर जज़म है, उसके बाद में हमजा आ जावे, चाहा आ जावे, चाइन आ जावे, चाहा आ जावे, चागाइन आ जावे, चखा आ जावे। इन 6 हरफन ने याद कर लियो। इन 6 हरफन में से कोई सो भी हरफ आगो तो गुन्ना ना हो से जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, बिगर गुन्ना के पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मिन गैरी, मिन गैरी, नून आया है, मीम नून से मिन, नून के ऊपर साकिन है, नून साकिन से बाद, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से क्या आया है? गाइन, इसलिए इजहार होगा। इसको जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसको बिगर गुन्ना के पढ़ेंगे। ठीक है भाई। हाँ, अब यौमइज़िन अलैहा। अब इसमें मतलब देखो, इसमें जैसे अब हम इसको अगर इस तरह पढ़े, जैसे यौमइज़िन आलिया, यौमइज़िन आलिया, तो मैं सही पढ़ रहा हूं या गलत? गलत पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने गुन्ना कर दिया, जबकि इबारत में बताया है कि दो ज़बर की तनवीन के बाद आइन आया हुआ है। इसमें देखो यौमइज़िन, दाल की नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, दो ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से आइन है, इसलिए इजहार होगा। इसको बिगर गुन्ना के पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? कहीं पर भी नून साकिन है, उसके बाद में अगर आइन, आइन हा, गैन खा और हमजा हा, इनमें से कोई भी हरफ आगे 6 हरफों में से, तो बिगर गुन्ना के पढ़ने पूरे कुरान में। ठीक है, सीधी सट, बगैर गुन्ना के। मैं साफ साफ बता रहा हूं, समझ लो, बिगर गुन्ना के पढ़ेंगे। हाँ, अगर इनमें से कोई भी हरफ आएगा तो अगर आपसे अब कोई, जैसे कोई सवाल करे, मन अदीन किताबुन हकीम, इसमें कौन सा कायद होगा भाई? मन अदीन किताबुन हकीम, मीम नून ज़बर मन, हमजा ज़बर आ, मन आ, दाल ज़ेर दी, मन अदी, नून ज़बर ना, मन अदीना। मन में नून साकिन आगा, नून साकिन के बाद हमजा होगी, नून साकिन के बाद हमजा आगी तो क्या होगा? इजहार होगा। सीधी सट बात है। हरूफ हल्की के 6 हरफों में से हमजा आया है मन में, और फिर किताब बुन हकीम में बाप दो पेश बुन, बा के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद में हाया है, इसलिए इजहार होगा। इसको बिगर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? तो हमें बस इतना याद रखना है कि दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो और नून साकिन हो। अगर इनके बाद में 6 हरफों में से कोई भी हुरूफ आते हैं तो इजहार होगा। ठीक है, क्या होगा? हाँ, दो ज़बर की तनवीन के बाद, दो ज़ेर की तनवीन के बाद, दो पेश की तनवीन के बाद और नून साकिन। नून साकिन किसे कहते हैं? नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून के ऊपर जज़म हो। अभी तो समझाई पिछली तख्ती में, जिस नून के ऊपर जज़म होगा उसको साकिन कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से हमें याद करना है और मेहनत करनी है। इन चीज में दिमाग में घुसाने 6 हरूफ याद करने हैं हमें, हमजा हा, आइन हा, गैन हा। अब इसमें हमें यह देखना है कि दो ज़बर की तनवीन के बाद में है, या दो ज़ेर की तनवीन के बाद में है, या दो पेश तनवीन के बाद में है, या नून साकिन के बाद में कोई भी हरूफ। ठीक है, करेंगे। इन हरफों को याद करें, इंशाअल्लाह आपके कुरान में कोई भी गलती ना होगी। अब हमें पता तो है नहीं है कौन सा कायदा होगा, और हम पढ़ते रहते हैं, नहीं कहीं पर गुन्ना कर रहे हैं, जहां पर गुन्ना नहीं हो रहा वहां पर गुन्ना कर रहे हैं, जहां पर हो रहा है वहां पर हम गुन्ना नहीं कर रहे। किसकी वजह है? क्योंकि हमने वो बात ही नहीं समझी। अब आपने समझ लिए
इंशाल्लाह आप इनको, इन हरफों को, इन तख्तियों को याद करें, ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इनको याद रखें कि दो जबर की तनवीन के बाद, दो जेर तनवीन के बाद, दो पेश तनवीन के बाद और नून साकिन के बाद अगर 6 हरफों में से कोई भी हरफ आएगा तो गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ, तो ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।